Good morning, students. Today we have to discuss about a new topic, that is nitrogen fixation. Means you know that composition of air in which the amount of nitrogen is 78 percentage, but we cannot use this nitrogen directly. It means there is need of fixation of this atmospheric nitrogen which is present in excess amount in atmosphere. So microorganisms such as bacteria, rhizobium, which is found in leguminous roots of leguminous plant, means pulses yielding plant such as pea plant, gram plants, pigeon pea plants, which can fix the atmospheric nitrogen in their compound form. And you know that pulses are the best source of protein, and in protein nitrogen is found. So in this way, with the help of microorganisms such as bacteria, rhizobium, we can get nitrogen in the form of pulses. So in this way, microorganisms also play a very significant role in fixation of atmospheric nitrogen. Now I will discuss about nitrogen cycle. In this flow diagram, which is also given in your book, textbook, see this flow diagram, that how the nitrogen is circulated in this nature through nitrogen cycle. Means we can say conversion of abiotic nitrogen into biotic nitrogen and biotic nitrogen into abiotic nitrogen is called nitrogen cycle. abiotic nitrogen मतलब जो नाइट्रोजन सॉइल में, एयर में या फिर वाटर में प्रेजेंट है, बिकॉज यू नो एयर, वाटर एंड सॉइल आर एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ environment, and plants and animals are biotic components of environment. So circulation of nitrogen from abiotic to biotic or from biotic to abiotic is called nitrogen cycle. How the nitrogen cycle takes place in this nature? Here you see, first is atmospheric nitrogen, means the nitrogen which is present in atmosphere, that is 78%.
and you know we cannot utilize this nitrogen directly. So in first process, nitrogen fixing by bacteria and blue-green algae fix atmospheric nitrogen. तो अभी हमने बताया कि राइजोबियम एंड सम साइनोबैक्टीरिया विच इज आल्सो कॉल्ड blue-green algae has capacity to fix the atmospheric nitrogen. So when bacteria such as rhizobium and blue-green algae fix the nitrogen, then bacteria in turn fix nitrogen into the nitrogenous compound. अब इसके बाद बैक्टीरिया क्या करेगा कि नेक्स्ट स्टेज में नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में नाइट्रोजन को चेंज कर देगा. मीन्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स का मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म में चेंज करेगा. अब यहाँ से नाइट्रोजिनस कंपाउंड से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल. अब नाइट्रेट और नाइट्राइट जो कंपाउंड्स बने वो कहाँ पे आ जाएंगे? सॉइल में आ जाएंगे. अब सॉइल से क्या होगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि अपटेक बाय प्लांट. सॉइल से प्लांट ले लेंगे, स्पेशली पल्सेस प्लांट, और जब फूड आइटम्स बन जाएंगे, मीन्स पल्सेस प्लांट से जब हम पल्सेस ऑब्टेन करेंगे तो उसको ईट करेंगे. मीन्स एनिमल क्या करेगा? इस प्रोडक्ट को ईट करेगा और वो भी नाइट्रोजन ले लेगा. इसके बाद जब डाइजेशन होगा उस फूड आइटम का एनिमल बॉडी में, देन आफ्टर डाइजेशन you know that there is formation of two types of material. First is useful material and second is harmful material. So harmful material means waste material which is necessary to excrete from our body, means feces and urine. तो नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड ब्रेथ, एक्सक्रीशन के थ्रू भी आएगा और कुछ ऑर्गेनिज्म की जो डेथ हो गई वो भी उसमें भी नाइट्रोजन उनकी बॉडी में है. और फिर क्या वो बैक्टीरिया के थ्रू या फिर डिकम्पोजिशन के थ्रू फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में फिर सॉइल में उसी तरह से चली जाएगी. अब यहाँ से देखिए ये प्रोसेस हो गया. अब सॉइल से फिर क्या बैक्टीरिया टर्न द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. और यही बैक्टीरिया क्या करेंगे कि फिर जो कंपाउंड्स नाइट्रेट और नाइट्राइट एंड नाइट्राइट बने थे उनको फिर गैसियस नाइट्रोजन में ब्रेक कर दिए और फिर गैसियस नाइट्रोजन कहाँ पे चली गई? एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस. अब नाइट्रोजन कैन फिक्स बाय लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन. मीन्स जो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो उससे भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है. और फिक्स होने के बाद फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में ऐड होगी. अब सॉइल से प्लांट लेंगे, प्लांट के लेने के बाद जो प्लांट प्रोडक्ट बनेगा मीन्स जो ग्रेन्स बनेंगे स्पेशली पल्सेस, उसको एनिमल ईट करेगा. ईट करने के बाद उसका डाइजेशन कर लेगा. डाइजेशन करने के बाद एक्सक्रीशन होगा. अगर एनिमल्स की डेथ होती है तो अभी उसके बॉडी में नाइट्रोजन है और फिर डिसइंटीग्रेशन के थ्रू और डिकम्पोजिशन के थ्रू वो नाइट्रोजन फिर आपके सॉइल में मिक्स हो जाएगी. और उसके बाद बैक्टीरिया सॉइल से में जो नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में था फिर इसको गैसियस नाइट्रोजन में चेंज करेंगे. और इसके बाद
फिर गैसियस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में उसी तरह से चली जाएगी। सो इट इज आर अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल कहने का मतलब कि जो एबायोटिक नाइट्रोजन है, मीन्स जो एयर, वाटर और सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में, वो कैसे लिविंग में जाती है और फिर लिविंग से फिर नॉन लिविंग में कैसे चली जाती है। तो इट इज आर अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। इन नाइट्रोजन साइकिल you have seen that there are different paths of conversion of gaseous nitrogen in their compounds with the help of microorganism, especially bacteria, rhizobium and blue green algae means cyanobacteria, which help in conversion of atmospheric nitrogen into compounds of nitrogen through different processes. So